عبداللہ جی 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 مفتی زبیر غزالی صاحب. ہاں بتائیے بتائیے بولیے جی زبیر غزالی صاحب, بولیے بولیے سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ التماس کروں گا کہ آپ میرا نمبر ان بلاک کریں. آپ بول, میں نے آپ کا نمبر بلاک کیا ہی نہیں, مجھے پتا ہی نہیں آپ کا نمبر بلاک میں نے کیا. ہاں آپ میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ نے میرا نمبر بلاک کر دیا ہے. قسم تو آپ کھائیے 10 بار کھائیے, ہاں مجھے تو نہیں آپ پتا نا. قسم کھا لے کہ آپ نے مجھے بلاک نہیں کیا. بس بھائی میری آپ سے کوئی اتنی گفتگو نہیں ہے جو میں آپ سے نمبر بلاک کروں. بلاک کیا ہوا رب کعبہ کی قسم, آپ قسم کھا لے کہ آپ نے مجھے بلاک نہیں کیا. آپ قسم نہیں, آپ بات بتائیے کیا ہے. نہیں بلاک, پہلے میرا نمبر ان بلاک کریں. آپ اب مجھے پتا نہیں نا, آپ مجھے میسج کر دینا. یہ کوئی بات نہیں, بات ہوئی آپ نے مجھے کالنگ نمبر سے بلاک کر دیا ہے. ہو سکتا ہے دھوکے سے ہو گیا ہو. دھوکے سے کیسے ہوگا یار, دھوکے سے کیسے ہوگا, دھوکے سے نہیں ہوتا ہے. دھوکے سے مجھے میسج میں نمبر نہیں دھوکے سے نہیں ہوتا. آپ مجھے, میں نمبر بول رہا ہوں, آپ اسے ان بلاک کریں. کیا بات آ گئی, ابھی آپ چیلنج کر رہے تھے نا. ارے اب سنو چیلنج دیکھو, چیلنج کس نے کیا ہے اور فون کس نے کیا ہے. میں نے کہا یہ اچھل کود کر رہے تھے, ہم نے کہا کہ تمہارے کوئی مفتی کو بلاؤ. چیلنج بازی کون کر رہا تھا, چیلنج بازی ہاں بس مفتی صاحب میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جہاں سے جس جگہ سے مجھ سے فون کٹ کر کے بھاگے, آپ نے ایک حدیث پڑھی تھی, ہم نے کہا تھا کہ اس کی عربی عبارت پھر سے پڑھیں سنائے. آپ نے اس کا اصل کتاب سے آج تک مجھے حوالہ نہیں بھیجا ہے. کتاب کہیں اور سے حوالہ نقل کرتے ہیں, دوسری کتاب سے اسکین دیتے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ اس کے اصل کتاب سے حوالہ دے. میں بتا رہا ہوں, مجھے یہ نہیں پتا میں نے آپ سے کب بات کی, کب میں نے آپ کو حدیث پڑھ کر سنائی. میرے پاس ہاں وہ ریکارڈنگ ہے میرے پاس, ساری ریکارڈنگ ہے. مجھے یاد نہیں رہتا ہے. تو میں وہ ریکارڈنگ دیتا ہوں. سنیں آپ نے مجھے کال کیا ہے ہاں کفر کے بارے میں, آپ وہ پیش کیجیے. کفر کے بارے میں نے ان کو کفر کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں ہے. میں نے ان کو کفر کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں ہے, یہ اپنی طرف سے کچھ ہی بولے. ہلو عبداللہ, ہلو زبیر صاحب, ہلو. ہاں یہ بول رہے تھے, بولے زبیر مجھے, میں بات کیا تھا ان سے یہ بارے میں کہ استعانت بالغیب مطلب وہ غیب میں مدد مانگنے پہ کیا حکم آئیں گا. ہاں وہ حدیث پڑھے تھے حضرت, حدیث پڑھے تھے. ہاں تو اب ہم نے, آپ یہ بتائیے. ہاں وہ حدیث نکال کے پڑھے آپ. علماء آپ دیوبندی ہیں یا غیر مقلد ہیں, آپ ہی بولیے پہلے. میں مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں. ٹھیک ہے جی. علماء دیوبند کا عقیدہ کیا ہے غیر اللہ سے مدد مانگنے؟ جی عقیدے کی تعریف کیا ہے حضرت, آپ عقیدہ بتائیے. آپ عقیدے کی تعریف کریں, میں عقیدہ بتاتا ہوں. کیونکہ آپ نے عقیدے کی تعریف آپ کو دیوبندیوں نے پڑھائی نہیں آج تک. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ بتائیں نا. نہیں آپ کو پڑھائی نہیں آج تک. میں ایک تعریف کرتا ہوں, عقیدے کی تعریف. العقیدہ تو ما لا يقبل الشک لدى معتقدی. آپ ایک تعریف کریں. پڑھ لیجیے, آپ کتاب و تعریفات پڑھ لیجیے. آپ کریں نا, آپ مجھے پڑھنے کا حکم دے رہے, آپ خود نہیں کر سک رہے ہیں. آپ عقیدے کی تعریف کریں. بتائیے, آپ کریں نا عقیدے کی تعریف. دیکھیں عقیدے کی تعریف نہیں معلوم ہے, ان کو عقیدے کی تعریف معلوم نہیں ہے, یہ کیا عقیدے کی بات کریں گے. چچورا پن کرنا گندی زبان استعمال کریں, گندی زبان استعمال کریں, گندی زبان استعمال کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں سے علماء اہل سنت گفتگو نہیں کرتے. ارے آپ پڑھیں نا وہ حدیث پڑھیں. آپ, میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ حدیث پڑھیں. آپ پوچھ رہا ہوں, ارے آپ کو عقیدے کی تعریف معلوم نہیں ہے مفتی صاحب. مفتی صاحب آپ کو عقیدے کی تعریف نہیں معلوم ہے, افسوس ہے, صد افسوس ہے. آپ عقیدے کی تعریف کریں. کیا یار آپ کیسے بے وجہ کی ترجمانی کرتے ہیں, آپ ہی بولیے نا. آپ اب میں عقیدے کی, میں نے آپ کو تعریف کی, آپ عقیدے کی تعریف کریں. عجیب بات ہے. عجیب بات, میں کچھ پوچھوں تو عجیب سی بات ہے. جو بندہ ہم سے عقیدے پر بات کرے گا, وہ بندے کو عقیدے کی تعریف پتہ ہے یا نہیں, یہ بھی تو دیکھیں کم سے کم. ارے یہ نہیں بتا سکے گا, بھاگ رہے ہیں آپ لوگ یہ ترجمانی کرتے. ارے بھائی اللہ کے بندے, اب یہی سب بولو گے, یہی سب پھر بولتے رہو گے. کچھ تو دکھاؤ تو صحیح, کچھ دکھاؤ مفتی صاحب. میں کہہ رہا ہوں, میں نے ایک عقیدے کی تعریف کی, میں نے ایک عقیدے کی تعریف کی, آپ ایک عقیدے کی تعریف کریں. آپ لوگ. ارے آپ لوگ کو چھوڑیں, آپ عقیدے کی تعریف کریں. لوگ کو چھوڑیں, پہلے اپنا جواب دیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے قوا انفسکم, اپنی پہلے فکر کرو نا. قرآن میں اللہ نے کہا قوا انفسکم, پہلے اپنی فکر کرو نا حضرت. آپ پہلے اپنی فکر کرو نا, لوگوں کا چھوڑو, پہلے اپنی فکر کرو. پہلے آپ اپنا جواب تو دو. آپ مناظرہ کرنے کے لیے آئے حضرت, آپ مناظرہ کریں گے عقیدے پر, آپ کو عقیدے کی تعریف معلوم نہیں ہے. ارے بھائی آپ ہی بتائیے, آپ لوگ کا ہاتھ چھپا کیوں نہیں؟ ارے میں کہاں چھپا رہا ہوں, یہ تو آپ چھپا رہے نا. میں نے آپ نے مجھ سے کہا کہ عقیدے کے بارے میں آپ بتائیں, ہمارا عقیدہ کیا. میں نے آپ سے عقیدے کی تعریف پوچھی. ارے آپ اپنا دامن کیوں چھوڑا رہے ہیں, آپ اپنا دامن کیوں چھوڑا رہے ہیں. آپ مناظر ہیں, مناظر کی کچھ جھلک دکھائیں نا. میں نے ایک عقیدے کی تعریف کی, آپ ایک عقیدے کی تعریف کریں. مناظر کے لیے جی
पहली बात तो यह है कि आप लोगों को यही तमीज नहीं है कि मुनाजरा होता क्या है, ठीक है। वो आप मुझे मत पढ़ाएं हजरत, मुझे बहुत महंगा पड़ जाएगा। अकीदे की तारीफ करना, वो आपको कुरान पढ़ना तक नहीं आता हजरत, वो आप मुझे क्या सिखाएंगे हजरत? पता तो चले ना कि हाँ, अरे हजरत आपको ऊँच कुछ पता नहीं है। गहरे पानी में है, अरे गहरे पानी, लंबे पानी, मोटे पानी, पतले पानी सब छोड़ो हजरत, मुनाजरे की तारीफ करो आप। मुनाजरा कहते हैं, ठीक है हजरत मुझे इल्म देने के बजाय अगर आप इल्म हासिल करे हुए थे, अगर आप इल्म हासिल किए होते तो आप इस तरीके से आज खामोश नहीं रहते थे। आप अकीदे क्या अकीदे की तारीफ पूछ ली, आप मुझे इल्म देना शुरू कर दिए और आपके पास खुद इल्म नहीं है, आप खुद मोहताज हैं, आप खुद मोहताज हैं। आप अकीदे की तारीफ करें, लोग कचर कचर करेंगे, बताइए। मैं वो आपका बंदा है, आप समझाएं उनको ना। हाँ ये फंसने वाला इसलिए भाई, आप फंसने वाला ये आप ना बोले। मुफ्ती जुबैर गजाली साहब जो आपके हैं, बकौल आपके, उनसे बात हो रही है ना हमारी। हमने अकीदे की एक तारीफ की है, इंसाफ तो ये होना चाहिए था, इंसाफ तो ये सुने ना, उलमाए देवबंद का क्या अकीदा? अरे वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने अकीदे की एक तारीफ की, आप अकीदे की एक तारीफ करें। हाँ अरे अकीदा बताइए। अरे अल्लाह के बंदे, आप अकीदे की तारीफ तो करो ना। मैंने अकीदे की तारीफ की थी, अल अकीदतु माला यक़बलु शक्क लदा मुअतक़िदिही। मैंने अकीदे की एक तारीफ की थी, आपको अकीदे की तारीफ पता नहीं है? आपका नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल्ला खान है। ठीक है, अब्दुल्ला की अब्द की तारीफ बताइए आप। क्या अब्द का माना होता है बंदा? माना नहीं पूछ रहा, तारीफ पूछ रहा हूँ। क्या तारीफ में फर्क नहीं जानते तुम? क्या बोले? माना और तारीफ में फर्क नहीं? अरे अल्लाह के बंदे, मैं अभी तो वही तो बता रहा हूँ ना, क्या आप क्या बोल रहे हैं? माना अब्दियत का माना पूछ रहे ना, अब्दियत का माना पूछ रहे क्या? तारीफ और माने में फर्क है। मुझे ये बताएं कि बात अब्दियत पर हो रही है, इस पर बात हो रही है या अकीदे पे बात हो रही है? मैं कह रहा हूँ ना, बात अकीदे की। चलो मैंने आपके सामने अब्द का माना बता दिया कि बंदा, और अबद याबुदु इबादतन माना इबादत करना। आप मुझे बता दें, चलिए आप बताएं। बात अकायदे मानवी पर नहीं हो रही, बात अकायदे इस्तिलाही पर हो रही है। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अकीदे पर बात हो रही तो अकीदे की तारीफ तो करना। आप मेरी तारीफ को तोड़ दें, आप मेरी तारीफ को तोड़ दें। तारीफ पूछनी है, आप मैंने माना आपको बताया ना, अब्द की तारीफ करना। हाँ वही तो मैंने कहा ना कि आबाद याबुदु का माना होता है इबादत करना। अरे हाँ पूछ रहा मैं, जाहिल तो माना ही तो बताऊंगा ना। अरे तारीफ तो आप मैंने लोगों की तारीफ बताई, आप बताए ना। अब देखो हंसना शुरू कर दी, इनके मुनाजिर साहब है ये बात अकीदे पर है, इधर लेकर के चले आप बताएं, चलिए आप बताएं। इसका मतलब आप भी नहीं हो, आप बताएं ना, तारीफ ही नहीं पता। आप बताएं। मैंने लोगों की तारीफ कर दी, आप बताएं। आला हज़रत के गुलाम से भिड़ने के लिए आप देखो क्या क्या बकना शुरू कर दिए। आपने की तारीफ। अरे अल्लाह के बंदे, मैंने तो कर दिया, मैंने आपको लोग भी तारीफ बता दिया ना। आप बताएं इस्तिलाही तारीफ, आप बताएं इस्तिलाही तारीफ। जंजो ही चला गया। देखो आप देखो कहाँ जा रहे हैं अभी, कहाँ? अरे हजरत मुनाजरे में रहो, अकीदे की तारीफ पर रहो। माना और तारीफ में तुम्हें यही नहीं पता। अरे अल्लाह के बंदे, मैंने आपके सामने लोग भी तारीफ बयान की ना, आबाद याबुदु। अरे अल्लाह के, ये अजीब सी बात है ना। माना और तारीफ में क्या फर्क होता है? माना तारीफ में मैं आपके सामने सारी चीज वजाहत करूंगा, पहले अकीदे की तारीफ करना, फिर उसके बाद में आप मुझसे पूछे ना मल फर्क बैना माना बैनल माना। तू अब्दुल्ला नहीं, अदुबुल्ला। तू अदुबुल्ला है, अंत अदुबुल्ला, अंत अदुबुल्ला, अंत गदी, वल्लाही अंत गदी। ये रट्टू तोता है, रट्टू तोता है। मुफ्ती जुबैर गजाली। अरे रट्टू तोते तू फंस, जुबैर गजाली, तू फंसा था। जुबैर गजाली कहाँ गया? किधर बयान ही नहीं, आइनल मफर जुबैर गजाली, बयान कर चल। जुबैर गजाली, अबे तू तेरे बाप की औलाद होगा, तेरा अकीदा बयान कर चल। हल अंत वलदु ज़िना, वाकई में तेरे हल अंत वलदु ज़िना, चुगत गामर गदौल लजी, अंत दयूस, वल्लाही अंत मुदमिनुल खमर, अंत दयूस, अंत दयूस, की तारीफ में क्यों? अंत मुदमिनुल खमर। हाँ तो जब कोई तारीफ याद नहीं रही तो मुनाजरा नहीं होता। अंत तक़दीर अला लुग़तिल अरबिय्या या जुबैर गजाली, या जुबैर गजाली, किस अला नफ्सिक व अला जमाअतिक व अला अहमद व रज़ा व अला कुल्ली बरेलवी। वल्लाही अंतुम अज़ल्लु मिनल यहूदी वन नसारा। कुत्ते और सुअर अल बरेलवीयून कुल्लुहुम अज़ल्लु मिनल यहूदी वन नसारा। कुत्ते और सुअर भागा। जुबैर गजाली कहाँ भागा? आइनल मफर या जुबैर गजाली? तू खाली भोग रहा था कुत्ते के
मैं कहाँ भौंक रहा हूँ? तेरा जुबैर का सामने लगा क्या? तेरा जुबैर गजाली को सामने लेकर क्या ना? कभी देखा क्या हाथी को कुत्तों के पीछे? जुबैर गजाली फरार हो गया। चलो चलो चलो, बस ये ऑडियो काम आएगी, ये ऑडियो काम आएगी। ये जुबैर गजाली भाग गया, ऑडियो काम आएगी। चलो ऑडियो काम आएगी। तेरी उस दिन अरबी निकाले थे, आज तेरी तारीफ निकाल दी उन्होंने। आज जुबैर गजाली भाग गया फिर, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा कुत्ते के जैसा भौंक रहा? हाँ, वो भागो तो पता चला था, जुबैर गजाली भाग गया अल्हम्दुलिल्लाह। अकीदे की तारीफ ऐसा अटका अटकम मुबीना हुआ, अटकम मुबीना। अब कुछ नहीं हुआ तो रट्टू तोता। अल्लाह के फजल से इस रट्टू तोते ने बहुत कुछ याद कर लिया, बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ बोलना जान लिया। तुम तो वो भी ना सीख सके, अकीदे की तारीफ नहीं पता। तुमसे मैंने पूछा कुरान की कौन सी रिवायत पढ़ते हो बरेलवी, बता। की तारीफ नहीं कर सका रट्टू तोता। अरे मैंने अकीदे की तारीफ की अल्हम्दुलिल्लाह। बात सुनना, अकीदे की तारीफ की मैंने। आलिमों के सामने जाके भाषा तेरा जुबैर गजाली को अकीदे की तारीफ मालूम नहीं, देख लिया ना? तेरे को अब्दी की तारीफ मालूम है क्या? हो रे बात अब्दियत पर थी, बात अब्दियत पर थी। मैंने लोगों की तारीफ कर दी ना। अब याबुदु इबादतन बाबे नसर शुरू से आता है। मैंने बताया ना तेरा जुबैर गजाली को क्या किया। तेरे जुबैर गजाली ने क्या किया? मैंने जो कहा वो मैंने करके दिखाया, मैंने बताया। तेरे जुबैर गजाली ने कुछ नहीं किया। तेरे जुबैर गजाली ने कुछ नहीं किया, फोन कट करके भाग गया तेरा जुबैर गजाली। तेरा जुबैर गजाली भाग गया फोन कट करके। चल कॉन्फ्रेंस में ले, उसको बुला। लपेट में आने वाले, चल। भाग गया, तू भी भाग ले, अब तू भी भाग ले। कैसा भाग रहा? क्योंकि कौन? जुबैर गजाली भागा। तेरा जुबैर गजाली भागा और मेरा नंबर ब्लॉक किया होगा जान करके, डर कर कसम नहीं खाया उसने। उसको पता है कि मैंने अब्दुल्ला को ब्लॉक किया है। अरे उसको गैर मुनसरिफ का एराब मालूम नहीं है। अरे मैं भोग कहाँ आ रहा हूँ रे गधे कहीं के। वो तो तुम लोग असल आला नस्ल के कुत्ते हो ना, तो हर चीज तुम्हें कुत्ता ही नजर आती है ना, भौंकना ही। अहमक रजा जब भौंकता था ना, तो वो भौंक आपके कानों में इस कदर गूंज गई है कि कोई कुछ भी करे तो बस आपको भौंक ही नजर आता है, क्योंकि आला हजरत जो थे वो आला नस्ल के कुत्ते थे। हाँ, वो तो बरेलवी पूरी की पूरी है, क्योंकि वो गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह करके खाते हैं। गैरुल्लाह के नाम पर खाना अल्लाह ने कुरान में हराम करार दिया है। बरेलवी हराम खाता है, गैरुल्लाह के नाम पे ज़बह करके खाता है। कुत्ते के जैसा भौंकते। हाँ, वो बरेलवी भौंकता। तुमसे इल्मी बातें तो होती। अच्छा, तुमसे इल्मी बातें होंगी? मुझे बताओ, तुमसे इल्मी बातें हो पाएंगी? अरे तू कहाँ इल्मी बात करेगा? अच्छा चल ठीक है, देखेंगे कौन दुनिया सुन के फैसला करेगी। मुझे बता, कुरान की कौन सी रिवायत पढ़ता है तू? अरे तू वो छोड़, तू बताओ, तू कुरान क्यों? सबसे बेहतरीन कुरान अल्लाह की, सबसे बेहतरीन किताब अल्लाह की कुरान है। सुन 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 अहमक गधे, सुन सुन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। क्या हदीस है मालूम? बोल। क्या हदीस है बोल? अरे तूने बुखारी का खुतबा पढ़ा है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद फइन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह है व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार व बिस्सनदिल मुत्तसिल मिन्ना इला शैखिल इमामिल हाफिज़िल हुज्जह अमीरिल मुअमिनीन फिल हदीस अबी अब्दिल्लाह मुहम्मद इब्न इस्माईल इब्न इब्राहीम इब्न अल-मुगीरह इब्न बरदिज़बतल जुअफ़िय्यिल यमानिय्यिल बुखारी रहमहुल्लाह। अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिउलूमिही व उलूमिही अजमाईन, आमीन या रब्बल आलमीन। ये बुखारी का खुतबा है। फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह, सबसे सच्ची बात जो है वो अल्लाह की कुरान है ना, अल्लाह का कुरान। बिल्कुल, बेशक बेशक बेशक। आप कुरान करीम की कौन सी रिवायत पढ़ते हो? अरे रिवायत, फिर वो रिवायत लाया तूने तो क्या पूछूंगा ना? बुखारी शरीफ के अंदर में लिखा हुआ उन्ज़िलल कुरान फ़ीही सबअतु अहरुफिन। अबे तो मैं हाफिज थोड़ी हूँ। तो अरे अल्लाह के बंदे, ये कुरान मजीद की आयत नहीं है, ये हदीस है बुखारी शरीफ की। हाँ, तो हदीस तो कुरान जो है 7 लुगतों पर नाजिल हुआ है। आप कौन सी रिवायत पढ़ते हो बताएं मुझे? अरे बेवकूफ मैं थोड़ी बोलो, मैं हाफिज हूँ, मैं हाँ आप हाफिज है, ठीक है, मैं मान रहा हूँ। तो आप कुरान पढ़ते, देखो देखो देखो, मैं कह रहा हूँ ना, एक हमारे कारी साहब पढ़ते हैं मालिक यौमिद्दीन, एक कारी साहब पढ़ते हैं मलिक यौमिद्दीन, एक कारी साहब पढ़ते हैं वज़्ज़ुहा, एक कारी साहब पढ़ते हैं वज़्ज़ुहा, एक कारी साहब पढ़ते हैं वज़्ज़ुही। कौन सी रिवायत आप पढ़ते हो? आप कौन सी रिवायत पढ़ते हो?
अरे देवबंदी मैं सिर्फ क्या हूँ पता है। मैं अरे हाँ नाज़िर हूँ। ठीक है, मैं मान रहा हूँ प्यारे, वो तो मैं मान रहा हूँ, ठीक है, अच्छी बात है। मैं नाज़िर हूँ। अच्छा, हाँ। नाज़राही में कौन सी रिवायत पढ़ते हो आप, वो बताओ। हम तो सीधा सीधा अलहम्दो से शुरू करते हैं और अरे वहाँ वो से ठीक खत्म है, होता लेकिन जो क़िरात आप पढ़ते हो ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये तर्ज, ये कौन सी कारी की क़िरात है? वल्लाहु आलम बिस्सवाब, उसके बारे में मुझे वो इल्मु अतम व अकमल, बोलो ना ऐसा, आपको पता ही नहीं है। आप नहीं, पढ़ते मैं- हो रिवायत हफ्स, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश चाहे बरेलवी हो देवबंदी हो, सारे के सारे पढ़ते हैं रिवायत हफ्स, हाँ, ठीक है। हाँ। मैं तकरीबन की बात बोल रहा हूँ, तकरीबन आपको पता ही नहीं है। लेकिन आप इस तरीके से, जब कुरान का ही आपको इल्म नहीं है, तो आप क्या बात करोगे? बात क्या बताओ, करूं, आप हमारे कुरान की रिवायत पढ़ते हो, कौन सी रिवायत पढ़ते हो, आपको वो पता नहीं है। मुझे बताओ कुरान के बाद सबसे बड़ा दर्जा किसका है? कुरान के बाद सबसे बड़ा दर्जा किसका है? मेरी बात सुन, बिदअत हदीस की किताबों में सबसे ज्यादा मोतबर किताब कौन सी है? कुरान है। कुरान, हदीस की किताब में भाई, हदीस की, हदीस में बुखारी है। बुखारी शरीफ का मुकम्मल नाम क्या है? अस्सलात व सही, क्या? नहीं सही बुखारी का नाम। जी जी जी, हाँ अस्सलातो व सही, हाँ रुक हाँ, जा। हाँ, बुखारी का नाम है, हाँ, मेरे जहन से निकल गया। हाँ, अस्सलातो व सही, हाँ, हाँ, अस्सलात नहीं रे, हाँ, हाँ। जहन में नहीं आ रहा। तुझे नाम से क्या ले, तू अब भी बस अब मुझसे सुन ले, अल जामिअ अस्सही अल मुख्तसर अल मुस्नद मिन उमूर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। हाँ आपको पता है इमाम बुखारी रहीमुल्लाह कब पैदा हुए? हाँ 150 हिजरी में कुछ हुए थे। इमाम बुखारी 150 हिजरी में पैदा हुए हैं। कब हुए थे? 194 हिजरी है। मुतवफ़ा 256 हिजरी है। हाँ तो आपको कुछ पता ही नहीं है। हाँ आपको कुछ पता ही नहीं है। बात ही नहीं कर रहे आप उसके आप कुछ को आप देखो, मैंने आपकी जुबान से ही सुनो वल फवलु मा शहीदत बिहिल आदा, ठीक है। ये समझते हो ये मकोला किसको बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, ये आपको नहीं समझ। देखो, आप अपनी जुबान से खुद दो चीजों को आपने तस्लीम किया, कबूल किया, एक्सेप्ट किया कि सबसे बेहतर चीज जो अल्लाह की किताब है, उसके बाद में बुखारी शरीफ। आपको दोनों चीज का इल्म नहीं है, तो आपको कुरान के आप नाजरा कुरान आपको पढ़ना नहीं आता है, कुरान मजीद देख करके आप आपको जरूरी है ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी बुखारी के अंदर में खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे और लोगों को सिखाए, है ना। आपको कुरान पढ़ना नहीं आता तो आप बेहतरीन उम्मत बनो ना। आप लोगों को आपको कुरान पढ़ना नहीं आता, लोगों से कुरान सीखो। आप इस हदीस के मिसदाक बनो। जहन्नुम में जाएंगे पूरे। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। आपको बेहतर बनना है, नहीं बनना है? बेहतर तो बनेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, तो फिर तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमी व मुस्लिमा, इस हदीस का तो कुछ मतलब है ना। तलब हासिल करो, इल्म तो हासिल करो ना, इल्म की तलब करो आप। लेकिन आपको कुछ ना कुरान पढ़ना आता है, आपको ना कुरान पढ़ना आता है, शैतान के जैसा ना। भाई मैं कह रहा हूँ कि आपको ना कुरान पढ़ना आता है ना। आप शैतान के ऊपर अपना कयास क्यों कर लेते हैं? शैतान को भी बहुत इल्म था, मगर भाई शैतान को इल्म कुछ नहीं था। शैतान को कुछ इल्म नहीं था, बहुत इल्म था शैतान को, कुछ इल्म नहीं था। बहरे कैफ सुने, बहरे कैफ, आपके नजदीक अगर शैतान को बहुत ज्यादा इल्म है भाई, तो वो शैतान वाला इल्म आप ही को मुबारक हो। वो जार है ना, जार। अगर उसके ऊपर सही इतलाक होगा ही नहीं। हेलो, हाँ हाँ, तो इसलिए तो घमंड करा था मैं आपसे बने हुआ। मैंने घमंड किया ही नहीं भाई, मैंने घमंड किया ही नहीं। मैंने कोई घमंड किया ही नहीं है। मैंने कोई घमंड नहीं किया मोहतरम। मैंने तेरे बहुत ऑडियो सुना, जो भी बरेलवी कामिल वाले उनके सामने जाके। भाई तो तेरा मुफ्ती भी तो भाग गया ना, तेरा मुफ्ती भी भाग गया ना। अरे तू अब्दुल की तारीफ में तेरे को। अरे भाई अल्लाह के बंदे, बात अकीदे की तारीफ पर थी, ईमानदारी से बताओ कि मैंने बात अकीदे पर थी, मैंने अकीदे की तारीफ की और उनको अकीदे की तारीफ मालूम नहीं। अब सुने उन्होंने कहा कि अब्द की तारीफ क्या है, बात अब्दियत पर नहीं थी। सुने दूसरी बात ये कि मैंने अबादा या अबूदु बाबा नसरा यंसुरु से बताया उनको लुग़वी तारीफ। कहना नहीं, मैं इस्तिलाही तारीफ करता हूँ, आप इस्तिलाही एक तारीफ करके बताओ। वो तो कुछ कर नहीं रहे, उनको तो कुछ पता नहीं है। उनको अगर अब्द की तारीफ मालूम, जैसे मुझे अकीदे की तारीफ मालूम थी, मैंने बताया। अगर उनको मालूम होती तो वो बताते, लेकिन उनको तो खुद मालूम नहीं है। उनको तो एक लफ्ज़ अरबी बोलना नहीं आता, उनको गैर मुनसरिफ का इराब मालूम नहीं है।
उनको हदीस पढ़ने के लिए कहा, वो हदीस नहीं पढ़ते हैं, मेरा नंबर ब्लॉक करके, उनको मालूम नहीं कि मैं नंबर ब्लॉक करके हूँ। तो ये तो हालत है तुम्हारी मुफ्तियों की। अरे तुम मांग रहे थे बड़बड़ कर, मैं कहाँ बड़बड़ कर रहा हूँ भाई, वो मुझे इल्म देना शुरू कर रहे हैं और उनको खुद पता नहीं है अकीदे की तारीफ। भाई मैं कहता हूँ कि हर चीज का जवाब देना हमारे ऊपर लाजिम नहीं है। क्यों? क्योंकि बात देखो उन्होंने खुद कही है कि अकीदा किसे कहते हैं, अकीदे पर बात करो। भाई तो अकीदे पर ही बात की जाएगी, जो भी उसके ज़िम्मे में बात होगी फिर अकीदा क्यों नहीं? उसी के ज़िम्मे में तो बात होगी ना भाई। तो मैंने उनसे अकीदे की तारीफ की, उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप अकीदे की तारीफ जब बात मानते बताओ, मैंने अकीदे की एक तारीफ की, उनको तो खुद अकीदे की तारीफ मालूम नहीं है। तो अकीदा क्यों नहीं बयान करे? तो भाई अल्लाह के बंदे अकीदे पर देखे, आप मुझसे कहें कि अब्दुल्ला साहब आप मुझसे अकीदे पर बात करो, तो हम तो जाहिर बात है कि जानेंगे ना कि आपको अकीदे के बारे में, आपको अकीदे के डिफिनेशन मालूम है या नहीं मालूम है। जैसे कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो मैं कहता हूँ हाँ भाई मुझे इंग्लिश मालूम नहीं है, मुझे ये जुबान नहीं आती है, साफ साफ बोल देता हूँ। इसमें ये क्या बात है? हर इंसान को हर चीज नहीं आती है। जैसे कि आपको जुबैर गजाली साहब वो तो मुफ्ती बन गए हैं, लेकिन अव्वल के बच्चे को जो तालिब इल्म है उसे ही मालूम होता है गैर मुनसरिफ का इराब क्या, लेकिन उनको गैर मुनसरिफ का इराब मालूम नहीं है। उनसे पूछे, मेरे 42-43 मिनट के ऑडियो, अल्लाह की कसम उन्होंने फाइल को मफूल पढ़ दिया है, मफूल को फाइल पढ़ दिया है। इतनी गंदी उनकी अरबी है, उनको तो अरबी बोलना नहीं आता है। अरबी बोलना है कहे को, तुमने उनकी आवाज एकदम दबा के रखे थे जब अरबी में वो जवाब दे रहे थे तुम। भाई वो तो देख कर किताब पढ़ रहे थे भाई। ये अगर जो देखो भाई जिसके अंदर इस्तिताअत रहती है ना, वो हर नहज पे बोलता है। ये नहीं कि एक वक्त में बोलेगा दूसरी वक्त में वो अरबी नहीं बोल पाएगा। जो अरबी बोलने पर जो कुदरत रखता है ना भाई, वो कहीं भी बोल सकता है, किसी जगह भी खड़े होकर के बोल सकता है, जिसके पास इस्तिताअत होगी। जो बंदा किताब सामने रख करके, कापी सामने रख करके वो देख करके इधर उधर की पढ़ता है, जिसको अरबी तक बोलने नहीं आता ढंग से, भाई मैंने अल्लाह की कसम उनकी इबारत सुनी है भाई। वो एक नाम पढ़ रहे थे, उसके ऊपर आखिर का एराब डालने वास्ते बोल रहा हूँ 3-4 बार भी एराब नहीं डाले, एक बार जम्मा डाल दिए गैर मुनसरिफ के ऊपर। इतनी फोश गलतियां करते हैं। उनको पूछे 42-43 मिनट का ऑडियो है। तो सामने हमने मुनाजरा क्यों नहीं कर रहे थे? तो मैंने तो आमने सामने मुनाजरे कहा था उनको कि आ जाए बेंगलोर, बेंगलोर आ जाए, तुम सामने मुनाजरा करेंगे? हाँ बेंगलोर आ जाए जुबैर गजाली साहब को लेकर के। वहाँ करे को तो ऐसी जगह रखो जहाँ तुम्हारा भी नहीं हो शहर, हमारा भी नहीं हो। कहाँ रखोगे बोलो आप? हाँ ठीक है, मैं बात करके बताता हूँ आपको। हाँ बात करें, आप शौक से बात करें ना। तो भाई मैं आपको ये कहूंगा कि ये गाली उली देना छोड़े, ये सब खत्म करे। जो आपके हक में जरूरी है पहले उसको सीखे भाई, पहले उसको सीखे। इल्मी इख्तिलाफ करना, इससे इंसान को खुशी होती है, लेकिन अगर बंदे के पास इल्म हो तो ही खुशी होती है। अगर बंदे के पास इल्म नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। देखो इब्न तैमिया रहीमहुल्लाह ने बहुत जगह पास अकाबिरीन का रद्द किया है, लेकिन वो इल्मी बंदा था। जब रद्द करता तो सुनने में मजा आता था, देखने में भी मजा आता था कि इल्मी इश्काल कर रहा है। आप सिर्फ सुवर वगैरह इस तरीके से अहमद रजा की जुबान बोलना शुरू, इससे कुछ होने जो नहीं करे। मैं तुम्हारे को मार दूंगा, मैं तुम्हारे को ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये भाई ये दिल जले वाली बात क्यों करते हुए? इससे कुछ होना जाना नहीं है। मैंने वो सब नहीं बोला था भाई, यही सब तो बोल रहे थे। तुम तो यहाँ तक के क्या कहते इलाकाई तासुबियत के ऊपर आ गए। तुम्हारे बिहार में अब्बा को अम्मा बोलते हैं, अम्मी को अब्बू। भाई आपके बिहार में, हमारे बिहार में बरेलवियत बहुत ज्यादा है थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज बिल्कुल खत्म हो गई। तो क्या जो बड़े बड़े आपके बेंगलोर में जो उलमा वगैरह वगैरह दीगर जगह सारे के सारे तो बिहार के ही है? तहकीक करो आप। तो वो सब के सब क्या अम्मा को अब्बा बोलते हैं, बहन को अम्मी बोलते हैं? यही मतलब इलाकाई तासुबियत। भाई ये मुसलमानों के अंदर इतनी बड़ी कमजोरी क्यों है आपके अंदर में? हमारे अंदर नहीं है भाई। आप ही ने तो कहा ना कि तुम्हारे बिहार में न जाने ऐसा ऐसा कहते, वैसा वैसा कहते। हमने आपको हेलो, तुम जबान पे बात कर रहे थे, मैं बोला आपसे बात करना थी, तो बोले करना थी, नहीं करनी है, तो मैं बोला जबान का फर्क रहता। हाँ जुबान का फर्क रहता है बिल्कुल। आपने बिहार को क्यों घसीटा? मुझे बोलते ना, मुझे खास करते, आपने पूरे बिहार को क्यों बुरा बोला? हाँ तो मैं बोला तुम्हारे बिहार में तो फिर ऐसा है कि भाई वहाँ। हाँ तो मतलब ये है, हाँ तो वहाँ पास तो बरेलवी उलमा भी है ना, तो बरेलवी लोग भी इसी तरीके से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वही मतलब कि जो आप कह रहे कि जो उनको बोलना नहीं आता, ऐसा कर लिया क्या, वो कर लिया क्या, ये कर लिया क्या। टोटल उसमें सुन्नी देवबंदी की बात नहीं लाया था मैंने। हाँ बिल्कुल, तो वही करे। तो इसमें तो सारे बरेलवी भी आ गए ना, यानी तुम्हारे उलमा जो चोटी के उलमा वो सारे के सारे तो बिहार में ही भरे हुए हैं। यानी कि तुम्हारी जो उलमा सारी की सारी, वो तुम्हारे जो सारे उलमा हैं, पूरी जमात जो है वो सारी की सारी जाहिल है। मतलब उसको बोलने भाई अवाम की, देखो अवाम के ऊपर रख करके बहस नहीं होती है। आपने जो कहा बात, ये क्या जिस पर मैंने आपको तंबीह की है, वो जुमला जो था मुज़क्कर और मुअन्नस, तज़कीर और तानीस, उर्दू में बड़ा इसका लिहाज रखा गया है, आप समझ सकते हैं। दूसरी बात, आपको जो
जुबान उर्दू में जो खुसूसियत नजर आती है, आप अरबी में बोलेंगे अलैका, जैसे मैं कुछ भी कहो तो उसके ऊपर कुछ भी लफ्ज अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ, काफ जमीर खिताब की इस्तेमाल करता हूँ, जिसका माना होता तेरा, तुझको, इस तरीके से, लेकिन उर्दू में उसके लिए आपको इस्तेमाल करते गए हैं। तो ये उर्दू की एक जीनत है। अरबी तो इन सब चीजों से मुस्तगनी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन आपको उर्दू तक बोलने नहीं आती, बहुत अफसोस की बात है। उर्दू जुबान तो सीखो भाई। तो आप जब आपको मैंने उर्दू जुबान बताई तो आपको तो ये चाहिए था कि आप क्या कहते, मेरा शुक्र अदा करते, आप मुझे कहते शुक्रिया कहते, लेकिन आप तो उल्टा पूरे बिहार को बदनाम करना शुरू कर दिए, इनको उल्टा पलटा। ये इलाकाई तासुबियत क्यों भाई? इलाकाई तासुबियत क्यों है आपके अंदर? इलाकाई तासुबियत नहीं है। और तो ठीक, आने आपके बिहार में ये बोलते हैं वो बोलते हैं, आपने सारी बातें झूठ बोली है। मैं भी तो बिहार में रहता हूँ, मैं तो वैसा नहीं बोलता हूँ। हाँ तो तुम नहीं बोलते, बहुत से बोलते हैं। बहुत से कौन बोलते हैं भाई? आवाम का तो कोई एतबार ही नहीं है भाई। आवाम कुछ भी बोल देगी, आवाम तो बहुत सारी बोलती रहती है भाई। आप देखो, मैं आवाम के ऊपर इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ कि आवाम कुछ भी करे भाई, चाहे आपके मसलक में हो या हमारे मसलक में। बात बरेलवी की होगी तो बरेलवी उलमा सामने आएंगे, बात देवबंदी की होगी तो देवबंदी उलमा सामने आएंगे। आवाम को रख करके बात ही नहीं होगी भाई। देखो आवाम तो सबसे ज्यादा जो होती है, वो सबसे ज्यादा जाहिल आवाम जो होती है वो बरेलवियत की, उसके बाद में अहले हदीस की। अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए देवबंद में बहुत ज्यादा इल्म पाया जाता है, बेशुमार, और सबसे ज्यादा उलमा पाए जाते जो देवबंद के ही उलमा पाए जाते हैं। देवबंद में इल्म है, बाकी सब जाहिल है। मैंने जब तो जाहिल नहीं कहा, बरेलवी में भी उलमा है। हाँ मैं मानता हूँ, नहीं ऐसा नहीं कि मैं सर से इनकार कर, लेकिन जो अक्सर और बेशतर जो आवाम जो जाहिल होती है वो बरेलवी में, और इसका एतराफ बरेलवी उलमा खुद करते हैं भाई, खुद रद्द करते हैं। जहाँ जहाँ पास चादर चढ़ाने वगैरह में ये बरेलवी उलमा जो हैं कुछ करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि रद्द करते हैं। चादर चढ़ाने का, मजार के ऊपर नाते मुशायरा में खाली इसमें ही पैसा बर्बाद करते हैं, जो असल चीज में पैसा बर्बाद करना लगाना वहाँ लगाते नहीं है। अच्छा बड़बड़ा लो तुम, बात मैं बड़बड़ाता नहीं भाई, मैं आपको मैं बड़बड़ाता नहीं हूँ। मैं सुनो हाँ। मैं क्या बोलो। अच्छा चलो, मैं आपसे एक दो आयत सुनना चाहता हूँ। चादर चढ़ाने वाले पे क्या हुक्म आएगा? मैं क्या बोल रहा हूँ, बरेलवी उलमा मना कर रहे हैं उससे। अरे यार बरेलवी उलमा मना कर रहे हैं। नहीं, जो चादर चढ़ाते बरेलवी उनके इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन, हाँ, फुजुल खर्ची करने वाले शैतान के भाइयों में से। शैतान के भाई है ना? ऐसा कोई भी करेगा तो शैतान का भाई है ना? बिल्कुल। हाँ, देवबंदी भी है ना? हाँ, तुम्हारा तारिक जमील ने चादर चढ़ाया था अजमेर में जाके, तो फिर शैतान का भाई होगा। कब मौलाना तारिक जमील साहब कब इंडिया आए हैं? आप इंडिया में आके अजमेर के वो वीडियो भेज दो आपको। हाँ, अगर वीडियो दिखा दो आप मुझे कि चादर चढ़ाया उन्होंने। हाँ बिल्कुल। हाँ, जब भेज दोगे जब उसके ऊपर बात होगी। नहीं, मगर आप पहले ये तस्लीम करो ना आप। हाँ बिल्कुल, अगर उन्होंने चढ़ाया तो मैं ये हुक्म उनके लिए बयान करता हूँ कि शैतान के भाइयों में से। बिल्कुल, ये वीडियो भेजना आप मेरी जिम्मेदारी है। हाँ भेजे ना, चादर चढ़ाया ला करके दिखाए ना ये। हाँ बिल्कुल, अजमेर में जाके चादर चढ़ाए थे आपके तारिक जमील साहब ने। हाँ, अजमेर में। कब की बात है ये? ये तकरीबन 1-2 साल या 3 साल पहले की बात। 2-3 साल पहले मौलाना तारिक जमील साहब इंडिया आए ही नहीं है। खैर ये भी आप झूठ। नहीं, तारिक से अगर तारिक जमील वहाँ पे चादर चढ़ा रहे होंगे तो वो तो मानेंगे ना आप। हाँ दिखाए ना आप मुझे, अजमेर की वीडियो भेजे। हाँ ठीक है। 2-3 साल पहले मुझे खूब अच्छे से मालूम है कि नहीं आया। और भेज दिया कभी और सही निकला तो। हाँ बिल्कुल, फिर वही हुक्म मौलाना तारिक जमील साहब के वास्ते भी है। हाँ तो वही बोलो फिर। हाँ, हम दोगली पॉलिसी थोड़ी करते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन लानत तो आपके ऊपर जा रही है ना पलट करके 3 साल पे। आप सुना ना, मैं क्या बोलो, जैसे कोई पूजा पाठ करेगा, ठीक है ना, घर में मूर्ति ला के पूजा करेगा, और एक आलिम अगर उसको जन्नती बता रहा कि भाई ये आदमी जन्नती है, माँ बाप का फर्मा बरदार है, ठीक है ना, और वो पूजा पाठ भी कर रहा है घर में, एक मुसलमान कोई भी मूर्ति ला के उसकी पूजा कर रहा है और अपने माँ बाप का बहुत फर्मा बरदार बंदा है, ठीक है ना, तो वही इंसान पे क्या अगर उसको कोई जन्नती बोलेगा तो उस पे क्या हुक्म आएगा? इल्म होना ना, जैसे कि मैं आपके ताल्लुक से मुझे इल्म नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, मुझे जाहिर ये मालूम है कि आप अपने माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर भी वो आलिम को जाहिर भी ये मालूम है कि भाई वो पूजा पाठ करता है। ये कैसे मालूम कर सकते हैं कि मुझे इस चीज का? अरे भाई मेरे भाई मेरी बात सुनो। जी। क्या है उसमें, कैसा है कि वो इंसान बहुत फेमस था, समझे? बहुत फेमस था जी। हाँ, बहुत पॉपुलर इंसान है वो। हाँ, घर में लाके पूजा करता मूर्ति उर्ति की, और माँ बाप का मतलब। तो आपको कैसे मालूम हुआ कि वो पूजा कर रहा है? अरे यार उसके वीडियो है, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, वो आदमी के भी। कहाँ मौजूद है? कहाँ?
अरे बिल्कुल, ये भेजना मेरी तो जिम्मेदारी भाई आप भेजोगे तभी ना, ये कच्ची पक्की बात छुपी छुपाई। जब तक तो उसको मालूम नहीं है भाई, जब तक तो उसको मालूम नहीं वो क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, तब तक हुक्म बयान। मेरी बात सुनो। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। कसम खा के बोल रहा हूँ कि मैं वो वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, वो बंदा जो पूजा कर रहा, ठीक है ना। हाँ। और उसके गवाह कई लाखों लोग हैं जो हाँ पूजा ठीक कर रहा। भाई, मैं मान रहा हूँ ना कि वो पूजा कर रहा है, मैं उस चीज को मान रहा हूँ, लेकिन ये चीज आपको कैसे मालूम है कि वो उस आलिम को ही मालूम है वो चीज? अरे वो आलिम जो है ना, वो आलिम, जब वो इंसान इतनी पूजा कर रहा, पूरे ऑल इंडिया में पाकिस्तान तक सबको मालूम है। तो उस आलिम को मालूम है, ये कैसे आपको मालूम है? अरे आलिम को मालूम है भाई, वो आलिम को पक्का मालूम है। कैसे? अरे वो वीडियो देखे हुआ है। अच्छा, वो तो आप वो आलिम से मुझे बात करा दे कि ये इंसान पूजा करता, आपने ये वीडियो देखा तो मैं मान लूंगा, बात कराएं। अभी बात कराएं वो आलिम से। और अगर वो आलिम ने बोल दिया हाँ मैंने इसको देखा था, है ना, ठीक है, और ये मैंने फिर भी ये हुक्म लगाया इसके ऊपर कि माँ बाप का फर्मा बरदार है और ये जन्नती है, तो आप देवबंदिया से तौबा करेंगे फिर? जी बिल्कुल करेंगे ना। बिल्कुल, आप पेश नहीं कर सके तो आप बरेली मसलक से तौबा करेंगे। हाँ बिल्कुल। जी ठीक है जी, वो आलिम से मुझे बात कराएंगे। हाँ, वो आलिम से बात करा तो मैं। वो आलिम जो है तो मगर यहाँ का नहीं है, पाकिस्तान का है वो। ठीक है, आप उनसे मेरी बात कराएंगे। अगर आप बात नहीं करा सके तो आपको तौबा करना होगा, ठीक है? आप तो बात नहीं करा सके क्या? उसका नंबर मिलना मुझे। हाँ, उसका नंबर इंशाल्लाह तलाश करेंगे हम। हाँ ठीक है। अगर नंबर तलाश करने के बाद भी आपने मेरी बात नहीं कराई तो आप तौबा करोगे बरेली मसलक से। हाँ, तो उसने वो वीडियो देखे हुआ है, क्योंकि पूरे लाखों लोगों ने वो वीडियो देखे हुआ है। वो लाखों लोग, देखो अभी आपने क्या कहा कि उस आलिम ने ये कहा है कि बात करिए उसने उससे, क्योंकि उस बता रहा उसको जन्नती अरे भाई जन्नती नहीं, अभी आपने क्या किस बात पे हमारी बात हुई और हलफ किस बात पे कि वो आलिम ये बात जानता है कि उसने सलमान ये क्या कहते हैं जिसको भी पूजा करते हुए देखा है। हाँ ठीक है ना, ये बात लगा मुझे दिखा दे, उनसे कहलवा दे कि हाँ मैंने ये देखा है कि ये इंसान पूजा करता है, ला करके दिखा दे मुझे, वो सुना दे, मैं उस आलिम से बात कर लूंगा ना। उस आलिम से आप नंबर आपने कहा कि बात भी हम करवा देंगे और यहाँ के आलिम है तो दे इंशाल्लाह। ठीक है, मैं बात करा दूंगा, मगर नंबर निकालना पड़ेगा मुझे, वो बहुत मुश्किल है उसका नंबर निकालना कोई टेंशन की बात नहीं है, आप राब्ता करें। ठीक है, एक काम करो फिर आप। अच्छा चलो, आपने एक दो बातें की ना, अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपने एक नाम सुना, मैं खुला नाम बोलता, अहमद नक्शबंदी नाम सुना आपने? अहमद नक्शबंदी? हाँ सुना है, हैदराबाद के। वो कहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमहुल्लाह जब कब्र के अंदर में गए तो उनसे मुनकिर नकीर ने बगैर सलाम के बात कर लिया, तो उन्होंने कहा कि आपको क्या तरीका मालूम नहीं कि पहले सलाम करके आओ, ठीक है। फिर उसके बाद में फरिश्तों को उन्होंने सपड़ा लिया, फरिश्ते उनसे पनाह मांगने लगे, डर गए, घबरा गए, उन्होंने अपने सवाल के अंदर फरिश्तों को घेर लिया, फिर फरिश्ते अल्लाह के यहाँ गए, फिर बाद में बहुत सारे शराइत रखी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमहुल्लाह ने और कहा कब्र के अंदर में मेरा कोई भी उम्मती आएगा तो उसको कुछ नहीं करेगा, अजाब कब्र से उसको जो मेरा मानने वाला होगा उसको महफूज रखेगा। क्या ये बात आप मुझे साबित कर सकते हैं किसी किताब से? किताब से नहीं साबित कर सकते ये बात, क्योंकि वो जो अल्लाह का वली होता वो उसकी जबान से जो कुछ बोलता वो बिल्कुल। ये भाई मैं कह रहा हूँ कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमहुल्लाह ने, मतलब ये कि अल्लाह मजबूर था ना, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, और फरिश्ते को अटकाने की हैसियत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमहुल्लाह के अंदर में आ गई है। वैसा नहीं है हाँ, तो फिर वो भाई ये बात आपको कैसे मालूम हुई कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने ऐसा किया, ये कैसे मालूम हुआ? हाँ, वो मैं सुना था वो बात, मगर उसके बारे में मुझे पूरा इल्म नहीं है ना, तो आप बताएं क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है क्या जो अहमद नक्शबंदी ने बयान की है? मैंने उसको कहीं पढ़ा ही नहीं, तो मैं कैसे बोलूँ? हाँ, तो ये सब झूठे बयान करते ना आपके, तो मैं नहीं बोल रहा वो झूठे बयान, ये तो हो गई बात। हाँ, जो आलिम ऐसा फतवा लगा रहा कि भाई ये जो मूर्ति पूजा करता था वो जैसे माँ बाप का वो फर्मा बरदार है तो वो जन्नत में कुफ्र के साथ भाई, कुफ्र के साथ इंसान कुछ भी कर ले, अगर इंसान काफिर है, वो गैरुल्लाह की पूजा कर रहा है, वो पूरी दुनिया की सारी नेकी को जमा क्यों ना कर ले, फिर भी वो जन्नती नहीं हो सकता है। हाँ, तो फिर वो आदमी तो उसको जन्नती बता रहा, उसको उस चीज का इल्म नहीं है ना। आप बस हमारी बात तो इसी पर आकर के रुक गई है ना भाई, कि वो आदमी ये कहेगा कि मैं ये जानता हूँ कि ये इंसान पूजा करता है, यानी कि गैरुल्लाह की, अब पूजा से मुराद तो गैरुल्लाह ही होगा ना भाई।
ہاں تو غیر اللہ کی وہ انسان مجھے کہہ دے کہ میں یہ جانتا ہوں، میں نے دیکھا ہے یہ کہ یہ انسان غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے، اس کے بعد بھی میں کہتا ہوں اس کے جنتی ہونے کا حکم بیان میں کرتا ہوں، ہاں تو وہ انسان سنا دے. میں ابھی کھلے دل سے کہتا ہوں کہ میں اس انسان کا رد کرتا ہوں کہ اس نے 100% بات غلط کہی ہے کہ اگر وہ انسان جب خالی غلط بات کرے اس پہ حکم نہیں لگا. بالکل غلط بات کہی ہے اس نے. جو کفر میں جو مطلب یہ حکم بتا رہا کفر کرنے والا جنت میں جائیں گا، اس پہ آپ حکم نہیں لگائیں گے، ہے نا؟ ٹھیک ہے، غلط بیانی کر رہا نا بھائی، وہ غلط بیانی کر رہا، وہ صرف غلط بیانی کرے گا. بالکل بالکل غلط. اور کیا کہو گے آپ؟ نہیں تو وہ مطلب قرآن کے خلاف کر کے وہ کفر نہیں کر رہا. ارے اللہ کے بندے سنے جہاں آپ نے پڑھائی نہیں کی، جہاں پاس بھی جیسے دیکھے کہ حدیث میں آتا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑا تو اس نے کفر کیا. فقد کفر، تحقیق کہ اس نے کفر کیا. ائمہ ثلاثہ حد کفر تک پہنچ گیا ہے، کفر بس یہی معنی ہوتا ہے جہاں پاس بھی، یعنی کہ جو بھی ائمہ جمہور امت کے نزدیک یہی ہے کہ وہ اس نے کفر والا فعل کیا، اس کو کافر قرار نہیں دیتے. تو یہ بات جو اس نے بیان کیا بھائی یہ غلط بیانی کی ہے. تو اگر اس نے کسی کافر کو مطلب جنتی بتا دیا تو اس کی غلطی ہے نا بھائی. اس کو یہ تھوڑی کہہ دیں کہ اس کی وجہ سے یہ کافر ہو گیا. کافر کو ایسا نہیں بولیں گے کیونکہ قرآن کے خلاف بات کر رہا ہو. بھائی بالکل وہی تو میں بول رہا ہوں، تو اسی وجہ سے تو ہم کہہ رہے کہ یہ غلط بیانی کر رہا. اور کیا میں بولوں کہ وہ کافر ہو گیا؟ ایسا تو تھوڑی کہیں پاس کسی نے بھی حکم نہیں دیا. قرآن کی مخالفت کر کے کافر نہیں ہوں گا. ارے اللہ کے بندے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان اگر کسی مومن کو کافر کہے تو وہ کافر ہو جاتا. تو ہم یہ کہتے ہیں اہل السنہ والجماعت جمہور کے نزدیک یہ مانا لیا گیا ہے کہ وہ انسان کافر نہیں ہوتا بلکہ کفر کا وبال اس کی طرف لوٹ کر کے آتا، اس کو فی نفسی کافر نہیں مانتے. اسی طریقے سے جو انسان یہ بات کہے اس نے غلط بیانی کی، اس کو کافر قرار نہیں دیں گے. ایسا ہاں کافر. ہاں آپ تو کچھ، اسی لیے میں کہتا ہوں بھائی، اسی لیے میں کہتا ہوں کچھ پڑھے لکھے کوئی سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جو بات کی ایک مبہم بات کی ہے. ایک بات بول لو، قرآن کے خلاف بات کرنے والا کافر ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بھائی قرآن کے خلاف بات کرنے والا جو قرآن کا انکار ہوگا وہ تو کافر کفر کو فیصلہ اس نے قرآن کا انکار تو نہیں کیا نا. انکار کر رہا ہے نا، کیونکہ قرآن میں اللہ خود بولا کہ مورتی پوجا کرنے والے کو، شرک کرنے والے کو میں کبھی نہیں بخشوں گا. بالکل بالکل. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بالکل میں مان رہا ہوں نا بھائی، یہ بات تو بالکل صحیح، یہ بات بالکل صحیح ہے. لیکن کوئی انسان مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک انسان کسی کافر کو، ٹھیک ہے، کسی کافر کو مومن بتا دے اس کو جنتی ہونے کا، تو کیا وہ انسان کافر ہو جائے گا؟ بالکل، کیونکہ قرآن کے کافر کو مسلمان بتانا تو ارے اللہ کے بندے آپ پھر سمجھے نہیں حدیث کو. آپ کو جب میں پہلے ہی کہا کہ جب حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت آئی ہے کہ ایک انسان جب کسی مسلمان کو کافر کہے تو وہ کافر نہیں ہوتا ہے، وہ کافر نہیں ہوگا. جبکہ جو مفسرین کا معنی ہے، جو جمہور امت کا معنی ہے، تو پھر جب جہنمی کو پھر اگر مطلب یہ کہ انسان مشرک کو اگر اس نے تو بتایا تو وہ تو غلطی کی ہے نا بھائی. اس نے تو غلطی کی ہے وہاں پاس. قرآن کے خلاف بات کر کے بھائی قرآن کے خلاف کیسے بات ہو گئی؟ یہ تو اس کی وہ تو غلط بات کر رہا نا، وہ تو اس کی رائے میں غلط ہو رہا نا بھائی. اس سے یہ تھوڑی ہوگا کہ وہ کافر ہو جائے گا. ارے کیوں نہیں ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا. بالکل کیوں بھائی؟ جب مومن کو سنو، جب مومن کو کافر بولنے سے انسان کافر نہیں ہوتا بھائی، کفر کا وبال اس کے اوپر آتا ہے، تو کافر کو جنتی بتانے میں وہ کہاں سے کافر ہو جائے گا بھائی؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، مجھے اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 4 چیزوں پہ. 4 چیزوں پر ہے. ہاں. نعوذ باللہ من ذلک. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. یہ کیا کہتے؟ بنی الاسلام علی 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے. آپ کہتے 4 چیزوں پر. بھائی اللہ کے بندے اللہ کے لیے کچھ علم حاصل کرو بھائی. یہی ہے کہ دیکھو تم لوگ جو گمراہ بنے، بھٹکے ہوئے اس کی وجہ. بھائی سنو دیکھو ابھی آپ کو جب اگر معلوم جنتی بتا کے تم اس کو خالی اس کے اوپر بھائی جنتی ہونے کا جو یہ حکم انسان یہ جو بیان کر رہا ہے تو یہ غلط بیان کر رہا نا اس. لیکن یہ تو پہلے کلیئر ہونا بھائی کہ وہ مورتی پوجا کرتا ہے، اس چیز کا اس کو علم ہو.
अच्छा ठीक है, मैं वो उससे हाँ वो मौलाना तारिक जमील साहब हाफिज़हुल्लाह से मेरी बात करवा दें आप। ठीक है नहीं, मैं बिल्कुल उनका पूरा वीडियो भेजूंगा मैं। हाँ वो वीडियो भेजे जिसमें उन्होंने सराहत की है कि मैं सलमान खान को जानता हूँ कि वो मूर्ति पूजा करता है। हाँ मेरी बात सुनो, हाँ पूरा याद आ गया, वो दोहरा बयान है उनका, ठीक है, पूरा वीडियो है मेरा। एक तरफ उन्होंने बोले थे जो मूर्ति पूजा करता वो जहन्नमी है, दूसरे वीडियो में उन्होंने ये बताया कि वो इंसान जो जहन्नमी को बताए थे वही इंसान के बारे में उन्होंने दूसरा दोगला बयान क्या दिया कि वो माँ बाप का बहुत फर्मा बरदार है और वो जन्नती है। अब ये वीडियो मैं आपको भेजूंगा। बिल्कुल भेजेंगे ना, लेकिन साथ में इसकी सुनो देखो, फिर आप तजाद बयान कर रहे हैं। जब आप खुद मान रहे हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया ये कहते हैं कि जो मुशरिक होगा वो जहन्नमी होगा, है ना? तो अब जो उन्होंने कहा कि वालिदैन की खिदमत करने वाला है वो जन्नती होगा, तो इन्होंने इसके साथ थोड़ी ये कहा है कि ये साथ में मुशरिक भी है, वो ये क्या कहते हैं कबर की पूजा करता है या मूर्ति की। भाई वही आदमी के बारे में बोले उन्होंने, तुम समझ रहे क्यों नहीं बात को? भाई फिर गलत बयान नहीं कर रहे। वो इंसान को कैसे मालूम है कि वो इंसान मूर्ति पूजा कर रहा है? अरे भाई वो बहुत फेमस है, वो भाई फेमस होना और चीज है भाई, फेमस होना और। देखो भाई कुफर का जो मसला, सुनो कुफर का जो मसला होता है ना भाई, ये बहुत तहकीकी होता है, तकलीफ। देखो यही वजह है कि तुम लोग जहाँ पर झूठ बोलते हो कि क्या, अल्लाह की कसम मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ ना तो आप सुनो ना, देखें हमारी बात किस पर आकर के रुकी है कि आप मौलाना तारिक जमील साहब से ये लफ्ज मुझे सुना देंगे कि मैं इस बात का मुझे इल्म है और मैं जानता हूँ, मैंने देखा है कि वो जिसका आप नाम ले रहे हैं सलमान खान का, कि वो सब याद आ गया। अरे मुझे सब मालूम है भाई, तुम जहाँ से चाल चलते हो ना भाई, तुम जहाँ एंडिंग कर देते हो ना, जहाँ से तुम पूरी एंडिंग कर देते, जहाँ से तुम्हारी सोच जाकर खत्म हो जाती है, उससे आगे चलती नहीं है ना, वहाँ उससे ज्यादा मैं जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दोहरा बयान भेजू उनका। हाँ भेजो ना भाई, भेजो ना। सुने देखो बात डीलिंग किस पर हुई, देखो बात क्लियर हो। आपने ये कहा है कि मौलाना तारिक जमील साहब हाफिज़हुल्लाह को इस बात का इल्म है कि सलमान खान मूर्ति पूजा करता है। हाँ इसके साथ वो जन्नती है, आप ला करके मुझे दिखा दे, वो मैं मानूंगा। उसके बाद में उन्होंने दूसरा बयान ये दिया कि नहीं ऐसे नहीं होता मोहतरम, ऐसे नहीं होता है। फिर जन्नती का हुक्म लगा रहे हैं आपके तारिक जमील साहब। हाँ वो मैं आपको वीडियो भेजता हूँ भाई। आप फिर यही तो है ना, कटिंग फटिंग को देख करके आप गुमराह हुए। जब मौलाना तारिक जमील साहब खुद कह रहे हैं कि मुशरिक जो होगा, भाई उन्होंने जो जन्नती होने का जो फैसला किया है वो वालिदैन की इताअत को देख करके कहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो साथ में मुशरिक है। मुशरिक होने के साथ वो जन्नती नहीं होगा जब तक वो इंसान शिर्क से तौबा ना करे। अगर कुफ्र के साथ कोई भी इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। हाँ तो फिर ये बात तारिक जमील को समझाओ ना भाई। बिल्कुल समझाएंगे भाई, बिल्कुल समझाएंगे। और उस पे हुक्म लगाओ, उस पे हुक्म क्या हुक्म लगा उन्होंने? जब अगर वो ये कहेंगे कि मैं सलमान खान को जन्नती मानता हूँ इस इल्म के साथ कि वो मूर्ति पूजा भी करता और वो जन्नत में जाएगा, तो ये मौलाना तारिक जमील साहब का हम आज भी रद्द करते हैं, कल भी रद्द करेंगे। आप सुनो। तारिक जमील साहब एक तरफ उनको मुशरिक बता रहे, ठीक है ना, बराबर है। हेलो जी बोलिए। एक तरफ वो तारिक जमील साहब बोले कि सलमान खान मूर्ति पूजा करता तो ये मुशरिक है, ठीक है ना। फिर दूसरी तरफ वो क्या बता रहे कि भाई नहीं, ये माँ बाप का फर्मा बरदार है और ये जन्नती है। तब तुम ये बताओ कि तारिक जमील साहब का कौन सा बयान हम सही समझना। हेलो जी, आपकी बात अगर हो गई तो मैं बोलूं? हाँ बोलो। मौलाना तारिक जमील साहब हाफिज़हुल्लाह का ये कहना कि ये जन्नती है, हाँ क्यों है, किस लिए है, जन्नत में जाएगा, ये जो बोल रहे यकीन के साथ वालिदैन की खिदमत करता है। ठीक है, एक बात हो गई। और कोई मुशरिक मतलब जन्नत में नहीं जाएगा, इसमें सारे जितने मुशरिकीन हैं, जितने कुफार सारे के सारे शामिल हो गए। तो वालिदैन की इताअत के ऊपर जन्नत में जाना कौन सी बड़ी बात है भाई? अल जन्नत, देखो इसके ऊपर हदीस पढ़ता हूँ एक सहाबी रसूल ने आकर के इरशाद फरमाया, हदीस अदबुल मुफरद में और दूसरी जगह में भी है कि अरदतु अन अग़ज़ुअ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हल लका मिन क्या तेरे लिए कोई माँ है? तो उन्होंने कहा कि नाम। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्ज़िमहा फ़इन्नल जन्नत तहत रिजल। तो आप ने इरशाद फरमाया फ़इन्नल जन्नत तहत रिजलैहि, जन्नत उसे क्या कहते हैं, दोनों पांवों के नीचे है। और इसी को एक हदीस में इस तरीके से ताबीर किया गया, अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात,
تو جو ماں باپ کی اطاعت کرے گا اس اعتبار سے وہ جنتی ہے بھائی، اگر وہ کلمے کے ساتھ مومن والا اگر اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے تو۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، سنو ہاں، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا اتنا قرآن میں ذکر کیا گیا۔ رہی بات کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے جو کہا کہ مشرک جہنمی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، تو قرآن کی دونوں آیت اور حدیث کو دیکھ کر مولانا طارق جمیل صاحب نے قرآن حدیث کے مطابق بیان کیا، لیکن بریلوی لوگ جو بیان کرتے ہیں وہ سارا کا سارا جھوٹ، اللہ کی توہین، فرشتوں کو عاجز و قاصر بتانا، ہر چیز میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو بڑا بتا دینا، بھائی یہ سراسر ظلم ہے۔ بندہ ہے، اب تم کو ولیوں سے بغض ہے بھائی اللہ کی قسم، مجھے کوئی بخاری شریف کی روایت ہے، من آذا لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا جو میرا ولی ہوگا اس سے اگر کوئی بغض رکھتا ہے، اناد رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ہاں بالکل۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی الحنبلی رحمہ اللہ ہمارے سروں کی تاج ہیں، ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے، سب کچھ ہیں، لیکن اللہ کے بالمقابل میں کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے بالمقابل کون کھڑا کر رہا ہے؟ وہی احمد نقشبندی نے اللہ کو مجبور کر دیا، شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ کر دیا، اللہ کے سامنے شرط رکھ دی۔ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم یہ ہوگی کہ کوئی سفارش کے لیے وہاں کوئی نہیں جائے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گرے ہوئے ہوں گے، کیونکہ اللہ کی منشا کو سب سے زیادہ حضور سمجھتے ہیں، جتنا اللہ کی منشا کو اور جو اللہ کیا کرنا چاہتا ہے، کیا بتانا چاہتا ہے، وہ جتنا حضور سمجھتے اتنا کوئی نہیں سمجھتا ہے۔ بالکل یہ بات تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گر جائیں گے، کوئی آدم کے پاس جائیں گے تو ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا، سہو کا، دوسرے کے پاس جائیں گے، ابراہیم کے پاس، ان کے پاس، سب کے پاس جائیں گے، محمد علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر سجدے میں رکھے رہیں گے۔ بخاری کے اندر میں روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جائے گا، یا محمد ارفع راسک، محمد اپنا سر اٹھا کیجیے، سل تو آپ سوال کیجیے، مانگنا آپ کا کام ہے، دینا میرا کام ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو سجدے میں گرے رہیں گے، اللہ کے سامنے کسی کی کوئی ہمت نہیں چلے گی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کون ہے؟ یہ تو بہت بعد کے ہیں، حنبلی ہیں، ہمارا ان سے بہت سارا فروعی مسائل میں اختلاف ہے۔ ہاں ایک منٹ میں ابھی کیا بول رہا ہوں آپ کو، پہلے آپ میرے کو یہ بات بتاؤ، ٹھیک ہے احمد نقشبندی کی بات بھی ٹھیک ہے، اگر کہیں سے کوئی ثابت نہیں ہے تو میں اس بات کو نہیں تسلیم کر سکتا، ٹھیک ہے؟ کہیں ثابت ہے ہی نہیں ہے، کہیں ثابت نہیں، جھوٹ بول رہا، اللہ کی توہین کر رہا وہ تو بالکل۔ تو ایک منٹ آپ سنو، میری بات سنو، اب تم جتنے بھی کفار ہیں، مشرکین ہیں، تو جو ماں باپ کے فرما بردار ہے وہ سب جنت میں جائیں گے کیا؟ سارے کے سارے جہنمی ہیں۔ ہاں جہنمی ہے نا، تو پھر یہ کیسا جو مورتی پوجا کرنے والا کون ہے؟ مورتی پوجا کرنے والا مشرک ہے، جہنمی ہے، اور وہ ماں باپ کا فرما بردار ہے تو بھی جہنمی ہے۔ ہاں تو پھر یہ اس کو جنتی کیسا بتا رہے؟ تو ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے نا کہ وہ یہ مورتی پورتی پوجا کرتا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، وہ جب ایک طرف بول رہا ہے مورتی پوجا کرنے والا یہ مشرک ہے سلمان خان، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف وہ بول رہا نہیں یہ بہت مطلب ماں باپ کا فرما بھائی دوسری طرف تیسری طرف نہیں، آپ نے بات کو سمجھا ہی نہیں ہے، بیان کے دو پہلو ہیں، بیان کے دو پہلو ہیں۔ ہاں تو وہی دیکھو کسی چیز کے دو پہلو ہیں، میں نے کہا کہ یہ مشرک ہے، کبھی جہنم میں نہیں جائے، یہ جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جلے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کیوں؟ قرآن کو میں نے دیکھا، اس کے اوپر میں نے جنتی کا حکم لگایا ایک انسان کے اوپر، کیوں کہ یہ کلمے کے ساتھ ہے، مسلمان ہے، سپوز دیٹ مجھے علم ہے کہ یہ مسلمان ہے، اس کا نام مسلمان گواہی دے رہا ہے، اور یہ محمد اللہ کو ایک مانتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مانتا ہے، حضور کو آخری نبی بتاتا ہے، اس اعتبار سے والدین کے احسان کے ساتھ کہا گیا، کیا کہتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ اللہ کو مانتا، اللہ کے رسول کو مانتا، قرآن کو مانتا، حدیث کو، ہر چیز کو مانتا، اور اس کے ساتھ شرک کرتا، مشرک ہے، جہنمی ہے۔ تو پھر اس کو پھر جنتی کیوں بتا رہا تھا بھائی؟ تو اس چیز کا اسے علم نہیں ہے نا۔ ارے پھر علم نہیں ہے جبکہ وہ، ارے یار میری بات کو سمجھ رہے کیوں؟ تو وہ بیان آپ بھیجو نا کہ مولانا طارق جمیل صاحب یہ کہتے ہو کہ میں سلمان خان کو یہ جانتا ہوں کہ وہ مشرک ہے۔ ہاں بالکل بھیجتا ہوں، ہاں بھیجو نا، وہ بھیجو نا بھائی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں شام کو بات کرتا ہوں آپ سے۔ ہاں ٹھیک ہے، اور زبیر غزالی کو تیار کرو۔ ہاں بالکل انشاءاللہ اس کو ٹھیک ہے، چلو 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 ٹھیک ہے۔